Good evening, student. Next chapter is our chapter number 10, government budget and the economy. Okay, so before starting it, we must know about it, who presenting the annual budget. Okay, so it is actually presented by the finance minister. Presently, we are having Nirmala Sitharaman as our finance minister. So our annual budget is presented by our finance minister. And February 1st is a well-known date in India when the finance minister present annual budget of the government and for its approval by the parliament. Fine. So there could be a question. So when first time it was declared? Okay, so first time in 1733, the British finance minister Sir Robert Walpole presented the budget in the British Parliament. तो पहली बार जो है 1733 में जो है फर्स्ट टाइम ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्टर ने इसे स्टार्ट किया. Okay, and India, James Wilson presented budget on 18 February 1860. So in our India, it was firstly presented on 18 February 1860. Okay, so it is generally presented in the Lok Sabha as president may direct. So according to the wish or according to the parliament, approval by the parliament, it is presented in the Lok Sabha. So, what is the meaning of government budget? Exactly, what is government budget? Government budget is the annual statement. Okay, so annual statement it means it's a 1 year statement showing itemized estimates of receipts and expenditure during a fiscal year. So it is showing the itemized estimates. It means we are not taking only one thing in it. हम इसमें ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व करते हैं. आई विल टॉक अबाउट लेटर ऑन अबाउट दिस कि इसमें जो है आइटमाइज एस्टिमेट जैसे हेल्थ पे गवर्नमेंट कितना खर्चा करेगी, एडुकेशन पे. सो ईच एंड एवरीथिंग इज प्रिस्क्राइब ओवर देयर कि गवर्नमेंट जो है ये पहला जो खर्चे हैं वो कितने करेंगे. Of receipts and expenditure, yes, that is very important. That here the government is talking about the receipts and expenditure during a fiscal year. Fiscal year आपको पता है 1 साल का ईयर होता है, ठीक है. तो गवर्नमेंट जो है एक फिजिकल ईयर में अपनी एनुअल स्टेटमेंट शो करती है जिसमें गवर्नमेंट अपने रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर के बारे में डिस्कस करती है कि गवर्नमेंट को इनकम के क्या सोर्सेज हैं. रिसिप्ट में व्हाट आर द इनकम सोर्सेज एंड एक्सपेंडिचर मीन्स गवर्नमेंट कहाँ पर खर्चा करेगी, कहाँ पर कंजप्शन करेगी. ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली गवर्नमेंट बजट इज शोइंग? गवर्नमेंट बजट इज शोइंग द financial performance of government over past 1 year as well as the program and policy of the government for the next 1 year. तो पिछले 1 साल में गवर्नमेंट ने क्या किया और आने वाले नेक्स्ट 1 ईयर में गवर्नमेंट क्या करेगी. अगर आपने देखा हो तो जो दिस गवर्नमेंट है इट इज़ गिविंग देयर ओन बजट आफ्टर पास 1 ईयर. तो हम 1 साल का बजट देख सकते हैं, ठीक है. लास्ट पास ईयर में गवर्नमेंट ने क्या किया है और नेक्स्ट 1 ईयर में क्या किया है. ओके, सो प्रोग्राम एंड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट आर नोन एज बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट की जो प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़ हैं कि हमें यहाँ पर इतना खर्चा करना है, इस तरीके के एक्सपेंडिचर करने हैं, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम पे कितना खर्चा करना है, ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट और फिजिकल पॉलिसी बिकॉज अर्लियर वी टॉक अबाउट फिजिकल पॉलिसी इज रिलेटेड विद रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, एज यू नो यू पीपल आर अवेयर अबाउट इट कि अभी प्रेजेंटली 20 लाख का पैकेज जो है 20 लाख करोड़ का पैकेज जो है दैट इज गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कॉप अप विद द सिचुएशन ऑफ कोरोना वायरस. ओके, ताकि हमारी इकॉनमी जो है ट्रैक पे आ सके. ओके, लेट इट सी द इफेक्ट ऑफ इट वेदर इट इज हैविंग अ गुड इम्पैक्ट ऑन द इकॉनमी और नॉट. ओके, so is it clear? So program and policy of the government are known as budgetary policy of the government, or you can say that government budget is a statement of expected receipt and expected expenditure of the government that reveals budgetary policy of the government to achieve the twin objective of growth with stability. Okay, so twin objective, that means government is not here talking about only growth, government is talking about the stability also. Okay, दैट इज़ मस्ट. अगर देखिए इकोनॉमी में जो है ग्रोथ हो रही है बस स्टेबिलिटी नहीं है. स्टेबिलिटी मीन्स देयर शुड बी ए स्टेबल, मतलब प्रॉफिट जो है दैट इज कमिंग इन अ स्टेबल. रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट को वो स्टेबल पोजीशन में है. रेवेन्यू कहाँ से आता है? गवर्नमेंट को टैक्सेस से आता है, ठीक है. तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पर ट्विन ऑब्जेक्टिव को क्लियर करने की कोशिश कर रही है, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी. फाइन. नेक्स्ट इज fiscal policy. Okay, so we have two aspects of fiscal policy, revenue
and expenditure aspect. So revenue is showing the receipts of the government and expenditure is showing the expected expenditure of the government. कि revenue show कर रहा है कि expected receipts के कौन कौन सी है, कहाँ से पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास, और expenditure show कर रहा है कहाँ कहाँ गवर्नमेंट खर्चा करेगी. ओके, ऑलरेडी हम पिछले चैप्टर्स में प्रीवियस वीडियोस में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट कि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर हैं और गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट्स हैं, गवर्नमेंट इज डूइंग एक्सपेंडिचर ऑन मेकिंग डैम, on the different poverty elevation programs, unemployment, giving employment to the people. So government is making so many plans for the education, for the health sector. तो ये सारे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है. एंड रेवेन्यू इज बाय टेकिंग द लोन, बाय टेकिंग द टैक्स. तो हम कहते हैं ना कि हमारी कंट्री तो डेवलपिंग कंट्री है, अदर कंट्री है डेवलप्ड कंट्री. सो द बेसिक रीजन इज द रेवेन्यू. ओके, इन आवर कंट्री वी हैव अ लैक ऑफ रेवेन्यू क्योंकि टैक्स रिविजन बहुत ज़्यादा होता है. Fine. So this is very important topic, that is objective of government budget. But now today I am discussing only about the two government budget objective, so that it must be clear to you properly. Okay, so first budget objective of government budget first is GDP growth. Okay, you people are already aware about it, that what is GDP. This is gross domestic product. Okay, so GDP growth means flow of goods and services. बच्चे ये कीप इट इन योर माइंड दिस थिंग कि जितना इकोनॉमी में फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा, जितनी गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो होंगी उतनी इकोनॉमी फ्लरिश होती है. Okay, so how the GDP can be grow by making public investment expenditure. Okay, it means government जो है public investment, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करके बाइंग द न्यू लैंड, मशीनरी, नई फैक्ट्री डाल देनी है. ठीक है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करती है. एंड बाय इंड्यूसिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कैन इनवाइट द पीपल. इनवाइट व्हाट टाइप ऑफ पीपल? दैट मीन्स प्राइवेट पीपल, जैसे टाटाज हैं, बिरलाज हैं, रिलायंस कंपनी, अंबानीज हैं. ओके, सो गवर्नमेंट इज इंड्यूसिंग द प्राइवेट पीपल टू इन्वेस्ट इन द कंट्री. How they are giving the tax rebate and subsidies. I hope you people have listened about the special economic zones. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जिसमें गवर्नमेंट कहती है कि आप एक इंडस्ट्रीज बनाइए. ओके, वी विल गिव यू द टैक्स रिबेट एज वेल एज सब्सिडी. यू पीपल हैव ऑल्सो लिसन अबाउट द स्टार्टअप. स्टार्टअप में भी गवर्नमेंट कहती है कि जस्ट हैव एन आइडिया, स्टार्ट एनी बिजनेस, वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट इन अ टैक्स रिबेट. जैसे 5 साल के लिए कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है. इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल में सब्सिडीज गवर्नमेंट देती है. तो इस तरीके के बहुत सारे बेनिफिट देती है. तो जब गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है तो गवर्नमेंट का माइंड में क्या ऑब्जेक्टिव होता है? सो दैट इज जीडीपी ग्रोथ. ठीक है, तो जीडीपी ग्रोथ जो है दैट कैन बी अचीव बाय इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय द पब्लिक और बाय द प्राइवेट. ओके, थ्रू द टैक्स रिबेट एंड सब्सिडी. And the next one is another objective of government budget is allocation of resources. Yes, allocation of resources means to divide the resources. Okay, so divide the resources in such aspect कि balance बना रहे. Balance किस में बनाना है? Social and economic goals of public and profit maximization. Is it clear? इसका मतलब है कि सोशल वेलफेयर भी होता रहे और प्रॉफिट भी अर्न करती रहे. क्योंकि अगर मैं सोशल वेलफेयर की बात करूं कि एक इकॉनमी सिर्फ एक गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ सोशल वेलफेयर करे कि चलिए आपको स्कॉलरशिप दे देते हैं, आपको पेंशन दे देते हैं, आपको फ्री में फूड दे देते हैं, तो इस तरीके से इकॉनमी नहीं चल सकती है. इकॉनमी चलाने के लिए वी नीड द प्रॉफिट एज वेल. सो गवर्नमेंट वाइल मेकिंग द एलोकेशन, वाइल मेकिंग द गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट जो है अपने माइंड में रखती है कि दोनों चीज़ें कंपीट हो सकें, सोशल वेलफेयर एज वेल एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ओके, सो एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन फॉर पब्लिक वेलफेयर. ओके, सो दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज डन बाय द गवर्नमेंट. अब जैसे एग्जाम्पल है, गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे सिगरेट एंड अल्कोहल, इट इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ फॉर द पीपल. गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर देती है. अभी दिल्ली सरकार ने क्या किया कि जब जैसे ही गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अल्कोहल शॉप ओपन हो जाएंगी, सो देयर वॉज अ लॉट ऑफ क्राउड. सो गवर्नमेंट ने क्या किया, दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया कि टैक्सेस बढ़ा दिए. ठीक है, सो बाय इंक्रीजिंग द टैक्स द गवर्नमेंट कैन जनरेट द रेवेन्यू एंड कैन पीपल एंड स्टॉप द पीपल टू यूज सच काइंड ऑफ थिंग्स. ठीक है, बट कीप इट इन योर माइंड, गवर्नमेंट अब क्वेश्चन कई बच्चे पूछते हैं कि मैम सिगरेट और अल्कोहल पर गवर्नमेंट बंद क्यों नहीं कर देती है जब ये इतनी इंजरीज है, तंबाकू क्यों नहीं बंद कर देती है? रीजन बीइंग इज द रेवेन्यू.
गवर्नमेंट इज जनरेटिंग अ लॉट ऑफ रेवेन्यू, बहुत सारा पैसा आता है गवर्नमेंट को इससे. दैट्स वाई गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग डिसीजन टू स्टॉप इट. ओके, एंड गवर्नमेंट इज गिविंग मोर सब्सिडी ऑन खादी प्रोडक्ट. ओके, ताकि हमारी खादी को जो है, हमारा जो अर्लियर वी पीपल वर यूजिंग, तो उसे सब्सिडी देकर एनहांस करती है. सो गवर्नमेंट क्या कर रही है यहाँ पर, ट्विन ऑब्जेक्टिव अचीव कर रही है बाय social welfare and as well as profit maximization. Okay, thank you so much students. If you like my video, kindly subscribe my channel and like my video. Thank you.